हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सो हम लोग एंटर कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लेक्चर नंबर 5, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में एंटर करें। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोगों ने देख लिया। नाउ वी विल सी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, और यू कैन से फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स variables, functions of complex variables. तो देखिए, so let us consider x and y be real variables. Then z equals to x plus iy is called complex variable. If corresponding to each value of a complex variable z equals to x plus iy in a given region R of Argand plane, then there correspond one or more values, one or more values of another complex variable of another complex variable w equals to u plus iv, then w is called a function of complex variable z, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, लेट्स से w is some f of z. देखो, just like in real world we were having some function y equals to some function f of x. इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको बोलते थे फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल्स या फिर रियल फंक्शंस. These are, this is a real function, and here this is a complex function.
The reason why I'm calling this as a real function, because here x and y, these both are real variables. These both are real variables. Okay. Similarly, here these both are complex variable. This is a complex variable. Complex variable. Okay. So for example, if I want to write w equals to z square, then see here w equals to z square. W is what? W is a complex function. If it is a complex function, it will be represented in the form of u plus iv. इसको हम u plus iv के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और z को हम x plus iy के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ z का स्क्वायर है तो इसलिए इसका स्क्वायर बनेगा. अब इसका स्क्वायर कर दूं, सो दिस इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस i टाइम्स 2xy बन जाएगा. सो जब आप कंपेयर करोगे, once you compare, this is the real part and this is imaginary part. So you can write here u here is x square minus y square and b is 2xy. So here you can say thus u and v are functions of real variables x and y. U and v are functions of real variables x and y. So you can write w is a complex function which is a function of z, and this function can be written as u, which is again a function of x and y, plus I times v of x and y. So this is way of representing. यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? So let's write a note. पहला लिखिए, if to each value of z there corresponds 1 and only one value of w, then w is called a single valued a single valued function of z.
Second, if to each value of z there corresponds more than one value of w, then w is called a multi-valued function, multi-valued function of z. आपका टास्क ये है कि just after the class you have to give me an example of single valued function and multi-valued function. मुझे दो एग्जाम्पल इसके चाहिए और दो एग्जाम्पल इसके चाहिए. तो after the class, today's class, so by the time you search and prepare, next heading लिखिए graphical representation of w equals to f of z. ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है? राइट हियर, to represent w equals to f of z graphically, to represent w equals to f of z graphically, we take two argand to represent w equals to f of z graphically, we take two argand diagrams. One to represent the point x comma y, and the other to represent the point u comma v. The former diagram is called XOY plane or Z plane, and the latter is called UOV plane or W plane. कहने का मतलब ये है कि एक प्लेन जैसे यहाँ पे x और y है, उसी तरह से एक और प्लेन आपका यहाँ पे बनेगा u और v का. तो इसमें सपोज आप पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हो x कॉमा y के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट मिलेगा u कॉमा v का. तो इस वाले प्लेन को हम लोग XOY प्लेन बोलेंगे और इसको UOV प्लेन बोलेंगे. और यू कैन से दिस इज योर Z plane and this is your W plane. So W equals to f of z
W इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो आर्गन डायग्राम की जरूरत होती है, जिसमें आप x और y इसको रिप्रेजेंट करते हो और दूसरे डायग्राम में u भी उसको रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, यू नोट दिस डाउन। आगे बढ़ते हैं, हो जाए तो बोलिए यस, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग फंक्शंस, write the following functions in the form f of z equals to u of x comma y plus I times v of x comma y। पहला फंक्शन है आपके पास f of z equals to z cube plus z plus 1। एक मैं कर रहा हूं, बाकी सब आपको करना है। f of z equals to z के जगह पे x प्लस आई वाई डालो, को क्यूब करना है, प्लस x प्लस आई वाई प्लस 1। इसका पूरा क्यूब आप करोगे, x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस आई वाई का क्यूब प्लस 3x आई वाई x प्लस आई वाई प्लस x प्लस आई वाई प्लस 1। दिस इज x क्यूब। आई क्यूब इज, आई क्यूब क्या होता है बोलो? आई इक्वल्स टू आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, सो यहाँ पे आई क्यूब हो जाएगा माइनस आई, सो दिस इज माइनस आई वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आई वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस x प्लस आई वाई प्लस 1। रियल पार्ट को एक साथ, सो x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको एक साथ करेंगे, प्लस आई टाइम्स माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई। ओके, सो यहाँ से कंपेयर करोगे तो आपको ये वाला पार्ट आपका u मिल गया, ये वाला पार्ट v आ गया। प्लीज टेल मी, डिड यू गेट दिस सेम और नॉट? ओके, सबका सेम आया है। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करिए। f of z equals to 1 by I minus z। नंबर 3, f of z equals to e के पावर में z स्क्वायर और इसका कॉन्जुगेट।
ये दोनों बन जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आंसर मुझे चाहिए। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, सॉल्व इट। आपको एक्स और वाई के टर्म्स में लेके आना है, अपने जेड के टर्म्स में कैसे छोड़ दी। मैं लिख रहा हूं, आप आंसर मैच करो। माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 - y का स्क्वायर माइनस आई टाइम्स 1 - y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 - y का स्क्वायर। पहला वाला देखो, सबका आया है ये वाला, गुड। सेकेंड वाला बनाइए। e टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, cos 2xy माइनस आई ई के पावर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन 2xy। ये मैच करो, दोनों मैच करोगे फिर आगे बढ़ो। जिसका दोनों बन गया आप लिख दीजिए बोथ सॉल्व। और किसी से अगर नहीं बना है तो पूछ लीजिए, बना देंगे। थर्ड बनाना है या आप लोग बना लोगे। चलिए थर्ड बनाते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है।
आपको बोला एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ई के पावर में जेड स्क्वायर और इसका कॉन्जुगेट लेना। तो जहां जहां जेड होता है वहां एक्स प्लस आई वाई कर देना है। तो हमें करना है इसको ई के पावर में एक्स प्लस आई वाई और इसका स्क्वायर है पूरे पे कॉन्जुगेट। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे ई के पावर में, इसको एक्सपैंड कर दो, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 2xy और पूरे पे कॉन्जुगेट। अब इस चीज को हम लिख सकते हैं, देखो ई के पावर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ई के पावर में आई टाइम्स 2xy और पूरे पे कॉन्जुगेट डालो। तो ई के पावर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज छोड़ना है और ई टू द पावर ऑफ आई थीटा, ई टू द पावर ऑफ आई थीटा क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो कॉस 2xy प्लस आई साइन 2xy और पूरे पे कॉन्जुगेट। अब e टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूरे पे कॉन्जुगेट डालना है। तो ये तो है, तो इसका कॉन्जुगेट तो सेम हो जाएगा और इसका कॉन्जुगेट दोगे तो साइन पलटेगा। cos 2xy माइनस ऑफ आई साइन 2xy। so this is e to the power of x square minus y square cos 2xy minus I e to the power of x square minus y square sin 2xy। समझ में आया सबको? चलिए, ये तो था, मैंने डायरेक्ट आपको बोल दिया कि यू कन्वर्ट दैट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ। अब हम इसको पलट रहे हैं, घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, देखो। लेट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस आई टाइम्स 2x minus 2xy where z equals to x plus iy. Use the expression, use the expression x equals to z plus z conjugate upon 2, y equals to z minus z conjugate upon 2i to write f of z in terms of z and simplify the result। हालांकि मैंने क्वेश्चन में ही आपको हिंट दे दिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये आपको दे, ये आपको याद रखना है। x को आप z के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन 2। y को कैसे लिख सकते हो, z माइनस z कॉन्जुगेट अपॉन 2। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। मे बी पॉसिबल दैट इन द क्वेश्चन इट विल नॉट बी गिवन, सो मैंने हिंट ही दे दिया क्वेश्चन में। इसको सब्स्टिट्यूट करिए, f ऑफ z को z के टर्म्स में लिखिए। इसको बनाइए, 2 मिनट दे रहे हैं, आंसर बताइए।
बना किसी से? बनाते हो कि नहीं तुम लोग? टाइम देते हैं आप लोग को सॉल्व करने के लिए, क्लास में एक्टिव रहिए, दिमाग खुलेगा, वरना आप छापने का तो छाप देंगे, पीडीएफ किताब में पढ़े हुआ नोट कर लो, ये काम नहीं चलेगा ना, क्लास में समझ में आएगा तभी फायदा देगा। बनाओ बनाओ। हम आंसर लिख रहे हैं, किसी का आया हो तो मैथ करो। एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस 2i जेड, इतना छोटा आंसर है। देखो किसी का आया तो बोलो। सेम। चलिए, आप लोग अब समझ पा रहे हो कि कैसे करना है इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। एक्सप्रेस एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड के पावर में 5 प्लस 4z² -6 इन पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म u ऑफ r कॉमा थीटा प्लस i टाइम्स v ऑफ r कॉमा थीटा। इसको r थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करिए, r थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करिए और सॉल्यूशन बताइए। सॉल्व करके मुझे बताना है u क्या है और v क्या है।
बना ऊपर पोलर कोऑर्डिनेट वाला? क्यों नहीं बनता है? सब्स्टिट्यूट करना है ना। तो देखो किसी का बना है तो यू आएगा। आंसर मैच करो एक बार। आर के पावर में 5 कॉस 5 थीटा प्लस 4r² कॉस 2 थीटा माइनस 6। ये आएगा आर के पावर में 5 साइन 5 थीटा प्लस 4r² साइन 2 थीटा। ये किसी का आया है? सॉल्यूशंस ग्रुप में डालते जाइए आप लोग, सॉल्व जो करते हैं, ताकि बाकी लोग जिससे नहीं बन रहा है वो लोग देख। और अगर किसी से नहीं बना है तो बता दो, सॉल्व कर देंगे हम। ये सब सॉल्व करेंगे तो टाइम किल होगा, इसीलिए हम नहीं कर रहे ताकि ज्यादा क्वेश्चंस करा पाए। इतनी मैच्योरिटी है आप लोगों में। नहीं होता है तो फिर मेरे को बताओ, कुछ सेलेक्टेड कर देंगे। सारा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम किल होगा। z = r। हाँ वही तो करना होता है ना। ऑयलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को? z = r e⁻θ वही डालना है और एक्सपैंड करना है। चलिए उसके बाद है लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे जैसे w = f(z) को हम बोल सकते हैं सेट टू हैव लिमिट L as z approaches a point z = z0 if for every epsilon we get a positive real delta such that yes। अच्छा, आप कोई बताएंगे कि what does this represent? जब हम लिखें इस तरह से, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे, कल भी लिखवाए थे आप। जब मॉड लेस देन इक्वल टू समथिंग लिखते हैं तो वो क्या ज्योमेट्रिकल फिगर रिप्रेजेंट करता है? ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, सर्कल रिप्रेजेंट करता है। ओके। ठीक, गुड। सर्कल बोलिए, डिस्क बोलिए, चल ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका, अब ये बताइए, अगर मैं सिर्फ इफ आई हैव रिटन सिंपली लेस देन, so will that periphery is also included in that or not? So circumference or the periphery or outer perimeter is not included. So this thing you have to take care for that. Symbolically हम लोग लिमिट f of z when z tends to z0 equals to L लिखते हैं। और ग्राफिकली देखो ध्यान से कि फॉर एवरी z नॉट इक्वल टू z0, देखो z प्लेन में दो पॉइंट है, एक है आपका z और दूसरा है z0। ठीक है। फॉर एवरी z नॉट इक्वल टू z0 इन डेल्टा डिस्क, ये कौन सा डिस्क है? दिस इज डेल्टा डिस्क z प्लेन का। f of z has a value lying in epsilon disk, और ये है epsilon disk। मतलब हर z के लिए आपको f of z आपको मिलेगा यहाँ। ठीक है, इस डिस्क में कोरस्पॉन्डिंग आपको इसमें छवि मिल जाएगी। ओके, इसको नोट करिए। क्वेश्चन लिखिए, कंप्यूट द फॉलोइंग लिमिट्स if they exist, if they exist। पहला, लिमिट z³ माइनस
आई जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस आई डिवाइडेड बाय जेड माइनस आई. जेड टेंड्स टू आई. तो सॉल्व करते हैं. लिमिट, इसको आप फैक्टराइज करिए. जेड स्क्वायर कॉमन, जेड माइनस आई प्लस आई टाइम्स जेड माइनस आई लिख सकते हैं, और नीचे में जेड माइनस आई एंड जेड टेंड्स टू आई इक्वल टू लिमिट जेड स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 1 है, टू जेड माइनस आई अपॉन जेड माइनस आई जेड टेंड्स टू आई. ये कैंसिल. आई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0. सेकेंड बनाओ. लिमिट आई जेड क्यूब प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड टेंड्स टू माइनस आई. सबका आंसर बताते जाओ. थर्ड, लिमिट आई जेड क्यूब प्लस आई जेड माइनस 1 अपॉन 2z प्लस 3i जेड माइनस आई स्क्वायर. Z tends to infinity. Fourth, limit 4 plus z square z minus 1 का होल स्क्वायर. Z tends to infinity. और फिफ्थ, लिमिट z पावर 4 अपॉन z स्क्वायर प्लस 42z z टेंड्स टू इंफिनिटी. आसान है ये सब, बनाइए, सब जानते हैं सॉल्व करना. सबका आंसर लिखते जाओ. सेकंड का आंसर बताओ. ये सब आप लगा सकते हैं. एल हॉपिटल रूल. 3 is wrong. 3/2 is correct. इसका आएगा 3/2. गुड. थर्ड बनाइए.
थर्ड का आएगा I/2। सही है। जिससे नहीं बनेगा रोक के पूछ लेना, और बन जाए तो अच्छी बात। थर्ड क्या बना दें, क्या बन गया है? फोर्थ का आएगा 1, फिफ्थ का आएगा इन्फिनिटी। मैच कर लो, पांचों सही है तो सही बात है, और अगर किसी का कुछ नहीं बना है तो बोल दो। जिसका जिसका बन जाता है सॉल्यूशंस आप लोग ग्रुप में डाल दिया करिए, ताकि टाइम सेव कर सके हम लोग। नहीं तो आप लोग का बन ही गया है, फिर से बनाना पड़ेगा। बना तो देंगे बट टाइम सेव करना भी है ना। ये पर्पल इन्फिनिटी कहाँ से आया? अच्छा है पर्पल इन्फिनिटी। चलिए मूविंग ऑन। क्वेश्चन इज शो दैट शो दैट लिमिट z upon z tends to 0 does not exist, does not exist। कोई बना सकते हैं इसको? वुड यू लाइक टू ट्राई? ट्राई करेंगे या बना दें? चलिए बना ही देते हैं। आपके पास दो एक्सिस है, एक तो रियल एक्सिस, एक इमेजिनरी एक्सिस। तो एक काम करो, जब बोला डज नॉट एग्जिस्ट, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि लिमिट एक बार इस डायरेक्शन में निकालो और एक बार इस डायरेक्शन में निकालो, और दिखा दो कि दोनों नॉट इक्वल है। क्योंकि एग्जिस्ट होने के लिए लिमिट का यूनिक होना जरूरी है। तो हम दोनों पार्ट करेंगे। देखो पहले लिखो, लेट z टेंड्स टू 0 along रियल एक्सिस। रियल एक्सिस पे क्या जीरो होता है, एक्स या वाई? रियल एक्सिस पे क्या जीरो होता है, एक्स या वाई? वाई जीरो होता है। सो अलोंग द लाइन वाई इक्वल टू 0, तो लिमिट z बाय z बार z टेंड्स टू 0, इसको आप लिख सकते हो लिमिट x प्लस आई वाई बाय कॉन्जुगेट, मतलब x माइनस आई वाई z टेंड्स टू 0। और y को 0 ऑब्वियसली इसमें सब्सटीट्यूट करने का, तो लिमिट x अपॉन x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, तो x टेंड्स टू 0, ये कैंसिल, बच गया क्या, 1। दूसरा
लिमिट z बाय z कॉन्जुगेट व्हेन z टेंड्स टू 0, फिर लिखो लेट z टेंड्स टू 0 अलोंग इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस में x 0 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस आई वाई अपॉन x माइनस आई वाई z टेंड्स टू 0। x को 0 करोगे तो क्या मिलेगा, लिमिट आई वाई अपॉन माइनस आई वाई व्हेन y टेंड्स टू 0। ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचेगा क्या, -1। तो आप लिख सकते हो सिंस द टू लिमिट्स are not same, are not same, so the limit is not unique, is not unique, hence the limit does not exist, hence the limit does not exist। समझ में आया ये प्रॉब्लम? अंडरस्टूड? हाँ, यही करना पड़ेगा। सिमिलर क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाओ, इसको बनाइए। शो दैट लिमिट imaginary of z upon z when z tends to 0 does not exist, does not exist। ये देखिए एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली आप ले सकते हो टेकिंग अलोंग द लाइन y इक्वल टू mx। अगर m के टर्म्स में लिमिट आ गया तब आप लिख सकते हो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द लिमिट, हेंस द लिमिट इज नॉट यूनिक, सो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप ऐसे भी कर सकते हो। so this is method 2, this is method 2, this is method 1, both are correct। चेक कर दीजिए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेकेंड मेथड में y इक्वल टू अलोंग, बस यही कर दीजिए टेकिंग अलोंग y इक्वल टू mx। देखो यहाँ पे अलोंग y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx पुट कर दो, तो लिमिट x प्लस आई एम एक्स होगा अपॉन
x माइनस आई एम एक्स, ठीक, x एंड y टेंडिंग टू 0, लिमिट x कॉमन ले लो, क्या मिलेगा 1 प्लस आई एम, नीचे में x कॉमन लो 1 माइनस आई एम, काट दो, एक्स वाई टेंड्स टू 0, इसका आंसर मिल गया 1 प्लस आई एम अपॉन 1 माइनस आई एम। अब आप मुझे बताइए कि हम जैसे जैसे m का वैल्यू बदलेंगे क्या लिमिट का वैल्यू बदलेगा? If I keep on changing the value of m, don't you think the value of the limit is also going to change? Yes or no? Yes. So if the limit values are not remaining same, so uniqueness of limit, there is no uniqueness of limit. And if limit is not unique, hence you can say that limit does not exist. Okay. I'm solving this second problem using this method, method 2. देखो यहाँ पे imaginary z. What do you mean by imaginary z? Imaginary z मतलब y. So I can write this as y upon x plus iy and xy tending to 0. Now taking along y equal to mx. So limit mx upon x plus imx, x tends to 0, y tends to, y तो है ही नहीं, जरूरत नहीं, x को कैंसिल मारो तो क्या बन जाएगा m by 1 plus im. So you can say here the limit values are depending on the value of m, which means for different values of m, the limit is having different values. Hence, there is no unique limit. Therefore, the limit does not exist. समझ में आया सबको? आगे बढ़े। लास्ट स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिखो, since for different values of m, there are different values of limit, as the limit is depending on m. Hence, there is no uniqueness of limit. Therefore, limit does not exist. एक कॉमन स्टेटमेंट है, सब प्रॉब्लम में चिपका देना, जो भी डीएनई वाला प्रॉब्लम रहेगा सब स्टेटमेंट में प्रॉब्लम में चिपका देना है। नेक्स्ट, पुट द हेडिंग continuity of a complex function. A function f of z is said to be continuous, at z equals to z naught if limit f of z when z tends to z naught, ये किसके बराबर होना चाहिए?
ये किसके बराबर होना चाहिए? देखो बैक स्लाइड लिखो जल्दी से, छापो। हो गया? बोलो ये किसके बराबर होना चाहिए? If limit f of z when z tends to z naught should be equal to f of z naught. Further, f of z is said to be continuous in any region R of the z plane if it is continuous at every point of the region R. सब वॉइस नहीं आ रही आपकी। नेटवर्क इशू है, लेट मी चेंज द नेटवर्क। डेटा खत्म हो